कोई बात नहीं, जब जिंदगी में जो करना वो तो करना ही है। अब वो उसको ऑन कर दीजिएगा। अब इधर देख ले जब तक ये स्टार्टिंग, फिर ना कहना कि मैंने कोई खराबी कर दी है। मैंने कोई खराबी नहीं की, तो उसको स्टार्ट करा के जाओ। चल मेरे तो कोई बिलाम ना, मैं टाइम ना, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस अब वो करें, बस स्टूडेंट्स के साथ है तो बातचीत पहले ही नहीं आप कीता सी ना। अच्छा, आप स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करें। हाँ मेरे खुदा। हेलो, गुड evening. Good evening, students. Hello, good evening, students. How many are present over here? Adila, good morning and good afternoon and good evening. Because this is now evening, that include morning, afternoon and evening. So three time I already wished you people. So hope everybody is fine. Hello. Hello. Hello, Dila. You're only one present in my class. Hello, Dila. You're the only one present in class. I haven't seen other responses. Please show me your response. How many present in class? Okay, Dila, let me start because I'm waiting for Maha because she went to. Okay. Is my voice is loudly, clear, understandable? Adila, my voice is really clear and what to call it, properly. Okay, so wait for 2 or 3 minutes because I already started on time because I'm waiting for uploading the slides. How are you doing, ma'am? Kya doing, ma'am? Working. You are good. You are staying at home, but look at me. I'm waiting. So today our topic, because it's visible to you. My slide is visible to you people. Listenable. Look at you. Write the listenable spelling is very wrong. Listenable. Adila, listenable होता है. It's a listenable, not listenable. So today our topic of our study is how to write a case study. So everybody have an idea and you people are used to it with the case studies. Everybody is familiar with the case studies. Okay, Jennifer. Everybody is, familiar with the case studies because in nursing and in medical educations, we are always preferred to case study. So this is much non-term case studies. Today we will learn how to write a case studies.
Okay, fine. Yeah. Okay. So I quote, I love to quote the quotations. I quoted one quotation over here again. The only real mistake is one कि जिसमें हम कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते, जो कुछ सीखते ही नहीं है. ठीक है. So for learning, because learning is warm to Tom, we already life once you know and having a knowledge, having a right directions to move toward the our destiny. We need to solve the everyday event, everyday life mistakes. गो लाइव वाला तो बटन नहीं आया.
मैं कॉल नहीं करनी ना। हेलो, इधर ना एक टैपिंग का बड़ा मसला है। Como, हाँ? Hello. Because of network. So we were talking about, my voice is clear again. Hello. Hello. So we were talking about the case, how to write a case study. Today, in today's lectures, we will learn how to write the case studies, what is case studies, and what was the beginning, what was the intro. We will learn case studies mean हम कहाँ करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं, सर्कमस्टांसिस में करते हैं, कोई केस हो उसको देखने के लिए, कोई डायग्नोज हो, एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, कोई की चीज़ों को, ऐसी की को फाइंड करने के लिए, थ्योरी में यूज़ करने के, डेटा कलेक्ट करने की, क्राइटेरिया को सेट करने के लिए, एंड नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। सो केस स्टडीज ग्रुप वर्क होता है, ईच ग्रुप शुड कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 ग्रुप। अगर हम केस स्टडी ग्रुप्स में करते हैं तो दैट इज मच प्रेफरेबल क्राइटेरिया टू फॉर द केस स्टडीज। So today our objective of case studies is the about case studies। case studies क्या के बारे में पढ़ेंगे कि case studies क्या होती है, history of the case study, history of the business cases, कि case studies की history में देखेंगे, business cases में कब ये use हुई, इसकी क्या definitions हैं, purpose of the case studies, significance, functions and benefit देखेंगे, warning है, कितने टाइप की केस स्टडीज होती हैं, केस स्टडीज मेथड कितने होते हैं, केस इंटरव्यू टिप्स क्या हैं, सम कॉमन मिस्टेक्स एंड केस स्टडी राइटिंग टिप्स कौन कौन सी हैं। सो प्रोग्राम अफेक्ट केस स्टडीज, क्या प्रोग्राम, कैसी चीज़ें होती हैं जो कि केस स्टडीज को अफेक्ट, कौन से प्रोग्राम अफेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू मेक अ केस स्टडी फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रेजेंट अ नर्सिंग केस स्टडी, प्रोवाइड रेफरेंसेस एंड केस स्टडी आउटलाइन एंड टूल्स। About case studies, so maybe you have an idea about that case studies are before case studies have been used since the early 1900 centuries for the such social issues or poverty and employment। इसमें ये बताया गया है कि केस स्टडीज को अगर देखा जाए तो अर्लियर 1900 सेंचुरीज के अंदर ये कैसे यूज की जाती थी, सोशल इश्यूज को फाइंड करने के लिए केस स्टडीज का यूज किया जाता है, जैसे पॉवर्टी में और अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेज को फाइंड करने के लिए केस स्टडीज की जाती थी। सो पर्पस ऑफ द केस स्टडी इज टू क्लैरिफाई, डिफाइन, अंडरस्टैंड एंड हाउ एंड व्हाई ऑफ द वेरियस सोशल इश्यूज। इनका जो मकसद होता था वो ये क्लैरिफाई करना, यानी कि ये क्लियर करना और डिफाइन करना, अंडरस्टैंड करना कि हाउ एंड व्हाई ऑफ वेरियस सोशल इश्यूज क्यों होते हैं और इनके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या पर्पस है। Far from perfect case studies have received criticism for the condensed number of subjects used to reach a hypothesis। ठीक है, सो उसने कहा कि अगर आप देखें, जब पीछे देखा जाए कि परफेक्ट जो केस स्टडी उस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता रहता है बिकॉज ऑफ द कंडेंस्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाइड नहीं किया जाता, चीज़ों को वाइडली नहीं देखा जाता। ठीक है, और जब वाइडली चीज़ों को नहीं देखा जाता तो हम अपने हाइपोथेसिस जो होते हैं वो क्लियरली जो होती है उन चीज़ों को समराइज नहीं कर सकते, उन चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से चीज़ों को डिफाइन नहीं कर। वंस यू हैव अ कंडेंस्ड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट you will not find the proper hypothesis
हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना या किसी चीज़ को फाइंड करना इन अ समराइज और ब्रीफ वे, किसी चीज़ की समरी को प्रेजेंट करना. So today case studies are more commonly used in the field of education, law and medicines. ये हमने पीछे इसका देखा कि क्या कहाँ यूज़ होती थी, सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ हुई हैं. बिफोर 19th सेंचुरीज की बात करो, 1900 सेंचुरी में बात करो तो ये बात सोशल इश्यूज और पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में इनका केस स्टडीज़ का यूज़ किया जाता था, जिसका मकसद होता था क्लैरिफाई करना, डिफाइन, अंडरस्टैंड और हाउ एंड वाई द वेरियस सोशल इशू कैसे होते हैं. ठीक है. सो जो इस पे बहुत तो भी आपने देखा कि क्यों इस पे क्रिटिसाइज होता रहा, क्योंकि कंडेंस नंबर ऑफ सब्जेक्ट यूज्ड टू रीच अ हाइपोथेसिस. सो टुडे केस स्टडीज आर मोर कॉमनली यूज. और आजकल हम जो देखते हैं केस स्टडी का जो रुझान है, जो ट्रेंड है, दैट इज मोर कॉमन इन एजुकेशन, लॉ एंड मेडिसिन में. हम सोल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम एजुकेशन में भी करते हैं, ताकि हम क्या क्लियर सोल्यूशंस के लिए, क्लियर डिसीजंस के लिए, क्लियर थ्योरीज के लिए जो हम लॉ बनाते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन केस स्टडी. हम उसको एक्सपेरिमेंट करके हम अपने जो है अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, लॉ और मेडिसिन में प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम केस स्टडीज़ का ज़्यादातर यूज़ करते हैं. सो हिस्ट्री ऑफ द केस स्टडी, अगर हम हिस्ट्री में देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी trace the phrase case study or the case study back as far as 1934 after the establishment of the concept of the case history in the medicines. हमने ये देखा कि 19th सेंचुरी में तो ये होता रहा. आपने जैसे पहले देखा कि कैसे होती थी, वो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को करने के लिए कहते थे. लेकिन 1934 में जो इस्टेब्लिश हुआ जो कॉन्सेप्ट केस हिस्ट्री जो प्रेजेंट की इन मेडिसिन में, वो कब इस्टेब्लिश होता है, 1934 में. The use of case study for the creations of the new theory in social sciences has been further developed by psychologists Barney Glazers and Anselm Strauss, who presented their research method ground theory in 1967. मेन हमने यहाँ देखा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो इसका जो सर्च किया, जब उसने इसका फ्रेज यानी कि उसके ऊपर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो ओपिनियन सर्च किया है, उसने देखा कि केस स्टडीज बैक फॉर एज 34 वो पहले से, आपने जैसे देखा 1934 से पहले से चल रही है. 19 सेंचुरीज में हमने इसकी हिस्ट्री को पढ़ा, लेकिन इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1934 के बाद किस चीज़ की इस्टेब्लिश होगी, केस हिस्ट्री इन मेडिसिन में केस हिस्ट्री को यूज़ किया जाने लगा, ताकि हम पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए या प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए जो है वो हम क्या कर सकें, हम जो है उसका यूज़ कर सकें. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I'm taking class. After the establishment of the concept of history in medicine, the use of case studies for the creation of new theory. तो उसके बाद जो हमने देखा कि ये जो केस स्टडी सी किस लिए यूज होने लगी, फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू थ्योरी इन सोशल साइंस. सोशल साइंस के अंदर नई थ्योरीज को क्रिएट करने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या करने लगे, केस स्टडी का इस्तेमाल होने लगा फॉर द फर्दर. और इसको फर्दर हमने देखते हैं कि डेवलप बाय एक साइकोलॉजिस्ट था, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, सॉरी, सोशियोलॉजिस्ट था, बार्ने ग्लाजर्स एंड एंसेल्म स्ट्रॉस. ठीक है. इसने क्या किया, who present their research method grounded theory in 1967, जिसने अपना रिसर्च मेथड में केस हिस्ट्री को प्रेजेंट किया कि रिसर्च मेथड के जरिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव थ्योरी के जरिए, यानी कि आप रिसर्च के जरिए आप केस स्टडीज कर सकते हैं. जैसे आजकल का जो न्यू मेथड आप देखते हैं कि हम रिसर्च बेस्ड है, ठीक है, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड को यूज किया जाता है. ग्राउंडेड थ्योरी इन 1967. ग्राउंडेड थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसकी बेस पर हम डेटा कलेक्ट करके अपना डिसीजंस को मेड करके इंफॉर्मेशन से या थ्योरी को जनरेट करते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन और एनालिसिस पर जो होती है ग्राउंड थ्योरी जो होती है इंक्लूड होती है. क्लियर विद दिस हिस्ट्री? Is there any ambiguity? Hello, my dear students, tell me, is there any ambiguity? Clear? Students, hello. Basic concept.
Students, clear basic concept? Respond me, please. So, again, to investigate what is the phenomenon and what is the context, researchers use case study to determine a consensus. कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट करना, जनरल एग्रीमेंट करना, यानी कि उन्होंने क्या क्या कि किसी फिनोमेने को, यानी कि किसी ऐसी सिचुएशंस को, फैक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो थ्योरेटिकल वे से. ओके, थैंक यू सो मच. सो व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? रिसर्चर्स यूज केस स्टडी टू डिटरमाइन अ कंसेंसस. फॉर एग्जांपल, वन रिसर्चर may believe that laying in the sun causes a different form of skin cancer that another researchers, or he may believe that it does not cause cancer at all. Before a theory can be introduced, both claims have to be tested. However, there is no guarantee that a case study will answer all the questions. Oftentimes, one case study will lead to additional study. इसमें ये बताया गया है कि हम केस हिस्ट्री की अगर बात करें तो क्या करते हैं हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए फैक्ट और सिचुएशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करते हैं, हम केस स्टडी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट में रिसर्चर जो होता है व्हाट इज फिनोमेना क्या है इन्वेस्टिगेट करते, टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि व्हाट इज फिनोमेना, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, रिसर्चर यूज केस स्टडी टू डिटरमाइन द कंसेंसस. वो जनरल एग्रीमेंट के कंक्लूड करके किसी चीज को अपनी जो एंड जो ओपिनियन है वो देने के लिए क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं कि किसी भी चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए वो अपने जर्नलाइज एग्रीमेंट दे देते हैं कि केस स्टडीज में इसमें क्या प्रॉब्लम थे, व्हाट वाज दैट. जैसे उसने एक एग्जांपल दिया है कि वन रिसर्चर का ये यकीन है कि हम अंडर सन अगर हम जाते हैं तो क्या करता है, कॉज स्किन कैंसर हो सकता है. लेकिन क्या करता है अनदर रिसर्चर्स, उसका ये बिलीव है कि डज नॉट कॉज कैंसर एट ऑल, वो सबको कैंसर नहीं कर सकता. Before the theory can be introduced, both claim have to be tested. उसने दोनों क्लेम दो बातें डिफरेंट ओपिनियन है, बट दे बोथ ऑफ दे मस्ट गो अंडर द इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द फिनोमेना. इन्वेस्टिगेट रिसर्चर्स ने दोनों क्वेश्चंस को टेस्ट करने के, दोनों प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए दोनों को भी टेस्ट, दोनों क्लेम को टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि however there is no guarantee that case study will answer all the. फिर भी आपको जरूरी नहीं कि आपकी हर केस स्टडी आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा. ठीक है, ऑफन टाइम अक्सर ये भी होता है कि वन केस स्टडी लीड टू एडिशनल स्टडी. आपने देखा कि अगर आप एक प्रॉब्लम को देखते हो तो उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम है. इसी तरीके अगर आप एक स्टडी को देखते हो तो उससे फर्दर बहुत सारी स्टडीज जो होती हैं वो जनरेट हो सकती हैं. क्लियर माय डियर? सो हम देखेंगे कि बिजनेस की हिस्ट्री जो हमने देखा कि सबसे पहले देखा कि बेसिक जो है जब 19 सेंचुरीज के अंदर क्या हुआ था कि बेसिक हम देखते थे कि वो, मैं समराइज कर रही हूँ अगेन, कि किस तरीके से केस स्टडीज को यूज किया जाता था पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करने के, दिस वाज द पर्पस था. लेकिन उसके बाद 1934 के अंदर हमने देखा कि मेडिकल में किस तरीके से उसका किस तरह से स्टार्ट हुआ है, मेडिसिन में यूज हुआ कि हम केस स्टडीज के जरिए हम इन्वेस्टिगेट कर सके फिनोमेना को. फिर हमने देखा कि जैसे एक मैंने हिस्ट्री में देखा कि क्या फिनोमेना को, फैक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिसर्चर क्या क्या चीज़ों, किस चीज़ पे जनरल एग्रीमेंट करने के लिए इसको क्या करना. जैसे एग्जांपल शेयर की गई है कि एक रिसर्चर का यकीन है कि सन कॉज डिफरेंट स्किन कैंसर, और दूसरा रिसर्चर कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि दोनों को. फिर आपने क्या किया कि दोनों की जो थ्योरी इंट्रोड्यूस करने के लिए दोनों के क्लेम को है वो टेस्टेड किया जाना चाहिए. तो फिर भी जरूरी नहीं है कि सारे आंसर आपको मिले, लेकिन अक्सर एक जो प्रॉब्लम है वो एडिशनल प्रॉब्लम को लीड कर सकता है. ओके, सो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस केसेस. व्हेन द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वाज स्टार्टेड, द फैकल्टी क्विकली रियलाइज्ड दैट देयर वर नो टेक्स्ट बुक सुटेबल टू ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस. जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फैकल्टी ने क्या किया कि उनके पास कोई सूटेबल बुक ही नहीं थी जिसमें वो अपने प्रोग्राम्स को फर्दर अपने ग्रेजुएट को क्या अंडरस्टैंड करवा सके या उनको टीच कर सके. द फर्स्ट सोल्यूशन इज टू प्रॉब्लम वाज टू इंटरव्यू लीडिंग प्रैक्टिशनर ऑफ द बिजनेस एंड राइट टू डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट दीज मैनेजर वर डूइंग. उसका उन्होंने सॉल्यूशंस का जो प्रॉब्लम उन्होंने कहा कि प्रैक्टिशनर जो है, जो बिजनेस में प्रैक्टिशनर जो बिजनेस कर रहे हैं उनका इंटरव्यू किया जाए, उनका डिटेल जो है वो इंटरव्यू किया जाए, जिससे आप उनका अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो किस तरीके से काम करते थे और उनके क्या क्या प्रॉब्लम थे,
और उसके लिए वो कैसे सॉल्यूशंस करते थे. तो दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस केसेस. So professor instructed their student to read the cases and to come to class prepared to discuss the cases and to offer recommendations for appropriate courses of action. Basically that the model still being used. उसके लिए क्या हुआ कि प्रोफेसर ने क्या कि स्टूडेंट्स को केसेस दिए और उनको कहा कि आप कम टू क्लास प्रिपेयर्ड डिस्कस, आप प्रिपेयर्ड हो के आएँ, आप इसको डिस्कस करें क्लास में और इसके ऊपर रिकमेंडेशन दी जाएंगी और जो कोर्सेज ऑफ एक्शंस होंगे उनको देखा जाएगा. ठीक है, तो वही मॉडल जो है वो आज तक यूज़ होता है. और आप ये देखते हैं कि मेडिकल एजुकेशन में भी हम इसी तरीके से देखते हैं कि उसमें क्या एंड क्या हुआ और व्हाट वाज द नीड टू re-evaluate, or it is enough to once you will evaluate your own survey and own case study, if your all the problem is solved, what was the question in your case study, then it's okay. And if it is not solved and there is an alternative problem, you need to go to re-evaluate, reconsider all the things and go for the further detail. So the study of a person's a small group, single situation or specific definition by देखे जाए तो क्या है कि केस स्टडी होती क्या है. द स्टडी ऑफ अ पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप, अ सिंगल सिचुएशन और अ स्पेसिफिक केस इज कॉल्ड अ केस स्टडी. इट इज इन्वॉल्व एक्सटेंसिव रिसर्च. सो इसका मतलब है कि केस स्टडी से एक पर्सन की हो सकती है, ग्रुप की हो सकती है, सिंगल सिचुएशन की हो सकती है, स्पेसिफिक केस की हो सकती है. और इसको हम क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं, जिसमें आपको एक्सटेंसिव यानी कि बहुत वाइडली आपको क्या करने की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है. यू नीड टू फाइंड मोर एंड मोर डाटा, मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट योर क्वेश्चन, योर सिचुएशन, योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ द पर्टिकुलर इशू और सिचुएशन. और इसमें आपने फिर क्या करना है, डॉक्यूमेंट एविडेंस को भी देखना है जो कि सिचुएशन से जुड़े होते हैं. सिम्टम क्या थे, रिएक्शन क्या था, फैक्ट एंड सर्टेन स्टिमुलाई एंड द कंक्लूजन रीच फॉलोइंग द स्टडीज. और उसकी कंक्लूजन्स को भी हम देखते हैं कि व्हाट वाज द कंक्लूजन्स. सो नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ केस स्टडी. पर्पस क्या हो सकते हैं केस स्टडीज के, तो हम इसमें देखेंगे कि रिसर्चर्स कैन यूज केस स्टडी मेथोडोलॉजी फॉर मैनी पर्पसेस. जो रिसर्चर्स हैं वो बहुत सारी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, इनका डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं for many purposes. For example, to explore, to describe, to explain. So one is the first is the explore. यानी कि क्या करना है, you need to go to the unknown area. कि आपने इसको किसी चीज़ का, if you are having an ambiguity or having a you want to go to the depth of the problem, you need a more knowledge. So you need to go to the unfamiliar issues, situations. आपने इसमें जाना है, उसको ज़्यादा डिटेल में अपने पढ़ने की ज़रूरत है. वेरी लिटिल थ्योरी इज़ अवेलेबल और मेजरमेंट इज़ अनक्लियर. जब आपके पास थ्योरी कम है और आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे जो क्लियर कर सके आपकी चीज़ों को, आपके प्रॉब्लम को, तो यू नीड टू एक्सप्लोर अगेन एंड अगेन. So go to the unfamiliar area. Do not have a fear to be, criticized or having a fear of that people judge and criticize. Be always ready to learn. Always go to the unknown area, because when we are learning in the concept of the learning, we learn the maxims of learning and we know the principle of the learning. So when we learn, we always, the good student and good learner always move to known to unknown, known to unknown और unknown to known. आपने हर तरह एंगल से देखना कि क्या चीज़ें आप जानते हैं और किन चीज़ों को जो नहीं जानते उनकी तरफ जाना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अपने क्लियरली इन इशू को एड्रेस करने के लिए यू नीड टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर डिटेल अबाउट द टॉपिक. सो डिस्क्राइब अ प्रोसेस और effect of an event or an intervention, especially when such event affect many different parties. Yes, describe का मतलब होता है आपने give detail account in a word of, आपने वर्ड की बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने
चीज़ों को यानी कि अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा आपने वाइड करना है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज को डेवलप करना है, पहले एक्सप्लोर करना है, ऐसी चीज़ों में जाने की कोशिश करनी है, फिर उस चीज़ों को वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करना है। व्हेन सच इवेंट अफेक्ट मैनी पार्टीज, जब आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है और दैट कैन अफेक्ट द बोथ पार्टीज और टू द ग्रुप, सो फिर यू नीड टू गो टू डिस्क्राइब द थिंग्स। सो एक्सप्लेन का मतलब होता है आइडिया और सिचुएशंस, डिस्क्राइबिंग इट मोर डिटेल एंड रिवीलिंग क्या होता है रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करना है, आपने उनको क्लियर करना है थ्रू द एक्सप्लेनेशंस। अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को आपने क्या करना है, डिटेल में आपने उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस के स्टडीज आर मोर फॉर्म ऑफ अ सोशल साइंस रिसर्च। केस स्टडीज जो है वो सोशल साइंस रिसर्च की फॉर्म है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ यूजिंग सर्वे और सम अदर फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट एन अकरेंस और occasions will study. To do this, researchers will collect information about a particular individual group and then present it. उसने कहा है कि इसकी बजाय कि आप सर्वे करो और अदर सम फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट और अकरेंस ऑफ ओकेजन्स, ठीक है, किसी को आप स्टडी कर रहे हो, इस करने के रिसर्चर जो होते हैं विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है इन ग्रुप में, एंड देन प्रेजेंटेड, तब आप जाके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि आपको हमेशा डायरेक्ट चीज़ों को जाके ऑब्जर्व करना पड़ता है और फिर जाके आप अपने फर्दर चीज़ों को देखते हैं। द रिजल्ट्स आर देन रिकॉर्डेड ओनली आफ्टर द इवेंट हैज़ बीन केयरफुली लुक्ड एट एंड द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एवेलुएटेड। आपने इसका जो रिजल्ट एंड में होता क्या है कि इसका जो रिजल्ट होता है एंड इवेंट होता है, आपने बिल्कुल केयरफुली देखना और इंफॉर्मेशन के रिजल्ट को रिकॉर्ड भी करना है जो आपने एवेलुएट किए हैं। द रिसर्चर इज लुक फॉर अ कॉमन थ्रेड और थीम्स टू प्रूव और क्रिएट देयर केस। रिसर्चर्स का जो और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको हर एंगल से देखना पड़ता है, थीम टू प्रूव, ठीक है, और क्रिएट एंड देयर केसेस। फंक्शंस क्या उसके हो सकते हैं? फंक्शंस हैं रिसर्चर्स विल यूज क्वेश्चनर इंटरव्यू, कि किस तरीके से वो केस स्टडी कैसे फंक्शंस करती है, इसका क्या पहले हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी है, हमने केस स्टडीज के पर्पस पढ़े हैं कि पर्पस इसके लिए होता है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, डिस्क्राइब करना एंड एक्सप्लेन करना। इसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। अब उसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंस यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी है। फिर हमने देखा है कि इसका फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस क्या होता है कि रिसर्चर कैसे काम करता है। रिसर्चर जो होता है वो क्वेश्चनर या इंटरव्यू और मेयर यानी कि वो बहुत कीन ऑब्जर्वेशंस करता है टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी कि जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको क्लियरली क्वेश्चनर बना सकता है, इंटरव्यू ले सकता है या फिर क्लोजली ऑब्जर्वेशन करके इस इंफॉर्मेशन को हासिल करता है। आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज कंपोज, जब इंफॉर्मेशन को कंपोज कर दिया जाता है, अ नैरेटिव इज क्रिएटेड टू गिव द सिनॉप्सिस ऑफ द स्टडी एंड इट फोकस। मीन आफ्टर द इंफॉर्मेशन जब कंपोज कर दी तो नरेट एक स्टोरी क्रिएट करता है और इसके लिए फिर एक ब्रीफ और सिनॉप्सिस का मतलब है किसी की ब्रीफ स्टोरी और समरी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसका हम सिनॉप्सिस कर, यानी किसी चीज़ का खाका पेश कर देता है। ऑफ द जैसे हम रिसर्च स्टडी करते हैं तो इसमें पहले क्या करते हैं, हम सिनॉप्सिस राइट करते हैं, यानी कि हम अपनी डायरेक्शंस बता रहे होते हैं कि व्हाट वी आर गोना डू इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ये हमारा प्रपोज प्लान है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो सिनॉप्सिस आपने रिसर्च पढ़ते हैं तो आपको रिसर्च में पढ़ा गया, ऑलवेज गोइंग फॉर द रिसर्च स्टडी यू नीड टू राइट द synopsis first and then you can lead the further study. After the information is composed, a narrative is created to give a synopsis of the study and its focus. और फिर इसका फोकस होता है, क्लियर करना होता है, it will clear convey to reader how the study was conducted and how the information was used. आपने इसमें फिर अपने रीडर को ये जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे सर, तो इससे क्या होगा कि जो आप अपने रीडर को अपना मैसेज जो कन्वे कर रहे हैं थ्रू द स्टडी, ठीक है, जो आपने कंडक्ट की है कि हाउ द इंफॉर्मेशन वाज यूज्ड, कि इंफॉर्मेशन को कितने सलीके से यूज़ किया गया। जब हम प्रॉपरली इसके क्या कहते हैं थ्रू उसके क्या कहते हैं प्रॉपर स्टेप से प्रोसेस से करेंगे तो रिसर्चर जो आपका रीडर होगा जो आपकी स्टडी को पढ़ रहा है उस पर एक आप पॉजिटिव
पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे कि वो इंफॉर्मेशन कैसे यूज़ की गई और इसको किस तरीके से फर्दर हम इस पर जो है अपना केस स्टडीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है? केस स्टडीज़ वर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द अर्ली 19th centuries एज वी रीड इन द फर्स्ट स्लाइड्स कि केस स्टडी किस तरीके से अर्लियर यूज़ की जाती था। द प्राइमरी पर्पस वाज टू क्रिएट सॉलिडिफाई चैलेंज और प्रूव थ्योरी। ये पहले हम इसको चैलेंज को मीट करने के लिए और ठीक है कोई चीज़ को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे उस थ्योरी को, इसका पर्पस था, इसका बेनिफिट ये होता था। केस स्टडी हेल्प टू कंफर्म व्हाट मे हैव ऑलरेडी बीन प्रूवन फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च। केस स्टडी जो हमें एक चीज़ और भी जो हेल्प करती है वो हमें जो क्लियर कर देती है वो ये है कि हमारे पास ऑलरेडी क्या चीज़ें प्रीवियसली जो हमने की हुई थी और अब क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट है। व्हाट वाज द लेक इन द प्रीवियस, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ एंड लेकिंग इन द प्रीवियस एंड व्हाट इज़ नाउ। So today case studies are most often used in education। आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो केस स्टडी है वो एजुकेशन में, एजुकेशनल थ्योरीज में यूज़ होती हैं। केस स्टडीज़ आर यूज टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू रियल लाइफ सिचुएशन। इसका जो बेनिफिट होता है ना केस स्टडीज़ का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि इसका रियल लाइफ में आपको सोल्यूशन मिलता है विद द प्रैक्टिकल थिंग। आप इस चीज़ों को देखते हो कि इसका प्रैक्टिकल क्या है। Which is the primary reason they were brought to fruitions। ठीक है, which is the primary reason they were brought to fruitions मतलब उसका कम आप कंक्लूजन पे जो किसी चीज़ का पूछते हैं इसका प्राइमरी मकसद होता है कि आप किसी कंक्लूजन्स पर पहुंच सकें। वार्निंग क्या हो सकती है? वार्निंग ये हो सकती है केस स्टडीज में इंक्लूड एन इंडिविजुअल और कंडेंस ग्रुप ऑफ पीपल। केस स्टडीज जो हो सकती है वो इंडिविजुअल की भी हो सकती है और ग्रुप की भी हो सकती है। कंडेंस थोड़े ग्रुप का। They have oftentimes been criticized due to the concise number of people who are evaluated critic। हमने देखा कि ये जो है वार्निंग इसमें जो लोग अक्सर देखा गया कि क्रिटिसाइज होने की वजह से क्या होता है कंसाइज नंबर ऑफ पीपल हु आर एवेलुएटेड, बहुत कम लोग होते हैं जो आप देखा जो एवेलुएट किए जाते हैं। तो अगर आपने काम किया आपका एवेलुएशन से नहीं हुआ तो दैट इज यूजलेस। आपने प्रॉपर उसकी एवेलुएशन नहीं की बिकॉज पीपल आर हैविंग हियर बिकॉज ऑफ फियर। Critic believe that limited number of people cannot give a significant amount of information। क्रिटिक से ये साबित हुआ है तनकीद से, यानी कि ठीक है ये मानना है, ये बिलीव है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट गिव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंक्लूड अ हाइपोथेसिस। जब आपके पास क्रिटिक से साबित हुआ है कि जब आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी तो आप अपने हाइपोथेसिस को क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते अपनी केस स्टडी को। जब आपके पास आप हाइपोथेसिस को तैयार ही नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ग्रेट इन्फॉर्मेशन यानी कि एक्सटेंसिव रिसर्च जो है नॉलेज नहीं है, आपने उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया, क्लियर नहीं किया, तो इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देन यू कैन hypothesize your case studies। So and the research has also been called bias। और इससे क्या लोग क्या समझेंगे कि रिसर्च जो है bias है, अनफेयर, अनक्लियर, नॉट फेयर। सो केस स्टडी मेथड हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं केस स्टडी मेथड। देयर आर अ नंबर ऑफ different source and method that research used to gather information about the individual or group। The major 6 sources that have been identified by the researcher Yin 1994 and Steck 1995 are Yin and Steck के मुताबिक जो उसने कहा है कि जो डिफरेंट मेथड और सोर्सेज यूज़ किए जा सकते हैं तो गैदर द इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करने के लिए इंडिविजुअल की हो या ग्रुप की हो, तो उसने 6 जो मेजर सोर्सेज जो डिस्क्राइब किए हैं दैट इज़ आइडेंटिफाई द रिसर्चर Yin and Steck ने 94 to 95 में इसको चीज़ को डिस्कवर किया है कि कितने टाइप की जो होती है केस स्टडी मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। This strategy involves observing the subject, often in the nature setting. While an individual observer is sometimes used, it is more common to utilize a group of observer। यानी कि ये स्ट्रैटेजी है किसमें, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, सब्जेक्ट की हम क्या करें ऑब्जर्व कर रहे थे इन नेचुरल सेटिंग। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम होता है
रियल सेटिंग में जाके हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इंडिविजुअल क्या करता है, ऑब्जर्वर इज समटाइम यूज्ड, इंडिविजुअल ऑब्जर्वर भी यूज कर सकता है, बात हम अब ग्रुप ऑब्जर्वर भी यूज करते हैं। दूसरी इसकी फॉर्म जाती है कि इंटरव्यू ले सकते हैं। पहले हमने क्या पढ़ी है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरी हम पढ़ेंगे इंटरव्यू ले सकते हैं। ऑफन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इन द केस स्टडी। An interview can involve structured survey type questions and more open-ended questions. इंटरव्यू के अंदर की जो मेथड खास इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं फॉर केस स्टडी, इन केस स्टडी में यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर डेवलप के उसमें हम सर्वे टाइप क्वेश्चन बनाते हैं या फिर ओपन एंड और मोर ओपन एंड, यानी कि सर्वे टाइप क्वेश्चन जिसमें मोर ओपन एंडेड क्वेश्चन शामिल, मीन मोर डिटेल में होते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे क्लोज एंडेड में देखा यस और नो में आंसर दिए जाते हैं, नॉट इन द वेरी डिटेल। So third form is a document, letter, newspaper, article, administrative record. डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, न्यूज़ लेटर है, लेटर भी हम देख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड बना सकते हैं जिसके ज़रिए हम केस स्टडीज़ को फाइंड हम कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है कि अक्सर when the individual or group allow researchers to understand more than what is initially obvious to observer। इंस्ट्रूमेंटल में ये तो इंडिविजुअल और ग्रुप जो होते हैं ये रिसर्चर्स को क्या अलाउ करते हैं टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट इज इनिशियली ऑब्वियस टू ऑब्जर्वर, यानी कि बेसिक चीज़ क्या हुई थी हम उसकी ज़्यादा डिटेल में जाकर क्या करते हैं, उसकी जो बेसिक कॉज को फाइंड करते हैं। आर्चीवल रिकॉर्ड, इसमें सेंसस रिकॉर्ड होता है, सर्वे होता है, रिकॉर्ड और नेम लिस्ट भी शामिल हो सकती है। फिजिकल आर्टिफैक्ट में क्या था, टूल, सब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट एंड अदर आर्टिफैक्ट ऑफन ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सब्जेक्ट। फिजिकल आर्टिफैक्ट का मतलब होता है जो हाथ के बनाए हुए टूल्स होते हैं। हमने देखा कि बहुत, जैसे हमारी बहुत सारी पिछली हिस्ट्रीज हैं तो उस पर बहुत सारे लोगों ने सर्वे किया, देखा कि वो पहले क्या थी, कैसे हुई थी। आपने देखा जितनी भी ट्रेडिशनल है, आपको बुक पुरानी लाइब्रेरीज में चले जाओ तो आपको पता चलेगा पूरी पुरानी चीज़ों को, जो फिजिकली आर्टिफैक्ट जो चीज़ें टूल में मौजूद होती हैं ये क्या करती हैं, इस पर भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सब्जेक्ट के जरिए हम इससे भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व द रिसर्चर एक्चुअली सर्विंग एज अ पार्टिसिपेंट इन इवेंट एंड ऑब्जर्विंग द एक्शन एंड आउटकम। सो इन्वॉल्व, इसमें रिसर्चर क्या करता है, एक्चुअली क्या करता है, पार्टिसिपेंट इन इवेंट, इवेंट के अंदर खुद उसको देखता है, पार्टिसिपेट करवाता है, दूसरों से पूछता है और एक्शन और आउटकम को देखते हुए उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। कि स्टडी इंटरव्यू टिप्स क्या हो सकती हैं, हाउ टू डू योर बेस्ट इन द केस इंटरव्यू। आपको क्या करना होगा, लिसन टू द प्रॉब्लम्स, लिसन टू द प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को सुनना है सबसे पहले। इंटरव्यू टिप क्या होनी, सबसे पहले लिसन द प्रॉब्लम। जब आप लिसनिंग इज ऑलवेज हैविंग अ गुड implementation, and good implementer is always a good leader. If you want to see a good leader is always good listener. So good listener is always good implementer. Where we stop listening the people, we will having a conflict and we will not relate the real situations, so we will not understand, we will having a ambiguity, we will not have a clear information, so we will make always wrong decisions. So listen to the problem, make sure you are answering the question that you have been asked, कि आपने उनके सारे अपने सुनना और उन सारे सवालों का जवाब। बिगन बाय सेटिंग द स्ट्रक्चर्स, think of 4 to 5 sub questions that you need to answer before you can address to overall issue. Think of 4 to 5 सब क्वेश्चन। आपने क्या करना है, बिगन बाय सेटिंग स्ट्रक्चर, हमेशा आपने अपने अपने जगह देख स्ट्रक्चर बनाना है कि कैसे, जैसे 4 to 5 क्वेश्चन आपने बनाने दैट नीड टू आंसर बिफोर यू कैन एड्रेस द ओवरऑल इशू। ठीक है, तो हमेशा आपने क्वेश्चंस को इस तरीके से पूछना है। स्टे ऑर्गेनाइज व्हेन डिस्कसिंग अ स्पेसिफिक इशू। माय वॉइस इज क्लियर? आई हैव a headache really.
Are you awake or sleeping? Are you with me? Oh yes, this energy I need. Okay, my voice is clear because I am not talking to the, because you know my voice is too much high also, that's the reason. Okay, thank you. Shumaila, Gaza, Gulelala, yes, Shumaila, Alia, thank you so much. So you are understanding all? Okay. So how to do the best is the first to listen. The problem began by setting a structure and stay organized. The most important thing is to stay organized. Always not be always having a haphazard nature. You always to need to stay on your point that you can, like for example, you are standing in first air and you want to climb on the very high, so that will cause the frustrations and that cause maybe you will be get injured. So always go progressively. You need to lead all the things step by step when discussing a specific issues. Remember why you are discussing it and where it fit into overall problems. So आपने क्या देखना है कि आपने स्पेसिफिक इश्यूज को देखना है कि रिमेंबर वाई कि आप क्यों इस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हो एंड और इसका जो वेर इट फिट इनटू ओवरऑल प्रॉब्लम, ठीक है, और ये इसको कर रहे हो तो ये किस ओवरऑल प्रॉब्लम में कैसे फिट हो रही है और इसको किस तरीके से इसको ये चीज जो है वो सोल्यूशन दे रही है. कम्युनिकेट योर ट्रेन ऑफ थॉट क्लियरली. आपने अपने माइंड की जो ट्रेन है उसको बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करना है. इफ यू हैव कंसीडर सम ऑल्टरनेटिव एंड रिजेक्ट दैम, इफ यू हैव कंसीडर सम ऑल्टरनेटिव, अगर आपने कुछ अल्टरनेटिव को कंसीडर कर लिया या रिजेक्ट कर लिया, टेल द इंटरव्यूअर व्हाट एंड व्हाई, वो क्या था और क्यों. ये चीज़ों को अपने कम्युनिकेट अपनी थॉट ऑफ कम्युनिकेशन को है कि ट्रेन को अपने क्लियर करना है. स्टेप बैक पेरियोडिकली, समराइज व्हाट यू हैव लर्न एंड व्हाट द इम्प्लीकेशंस अपीयर टू डू. सो स्टेप बैक पीरियडिकली, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, चीज़ों को करना है कि पहले ये क्या था, ये नहीं है, अगली बात पीछे और पिछली की बात अगले. आपने ऐसे करके और इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी, उसको आपने थ्रू प्रोसेस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या इंट्रो है, फिर उसकी कॉजेज हैं, सिग्निफिकेंस है, ये है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को अपने पीरियडिकली उनको समराइज करना है. Ask for additional information when you need it, but make sure that the interviewer know why you need the information. सेवंथ पॉइंट है वॉच फॉर क्यू फ्रॉम द इंटरव्यू. आपने जब इंटरव्यूअर से इंफॉर्मेशन लेनी है तो अपने उसके क्लू को भी अंडरस्टैंड, उनके इशारों को भी समझना है, हिंट को भी समझना है कि वो क्या बात एक्सप्रेस कर रहा है, क्या बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. यू नीड टू बी मेक अ वेरी क्लियर टू, यू नीड टू help your interviewer. So any information given to you by the interviewer is meant to help you. Listen carefully and follow their lead. आपने वो जब भी बात करा वो आपका उसका जो कोई भी क्लू है that will help you to, आपने उसको केयरफुली सुनना है और इसको फॉलो करना है. Be comfortable with numbers. You will always have to work with the number in case that this require comfort with basic arithmetic and sometimes large quantities. You may also be asked to perform estimations. मीन जो आपने हमेशा क्या करना है, अपने आप को नंबर के साथ बहुत कंफर्टेबल रखना है, ठीक है, ऑलवेज इन द केस. और इसके लिए क्या है, आपको रिथमेटिकली क्या नंबर्स को करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको इसमें रिथमेटिकली मैथमेटिक काम करने की ज़रूरत है, जिसमें आप नंबर्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. हो सकता है लार्ज नंबर हो, समटाइम लार्ज नंबर हो सकता, क्वांटिटीज़ में हो सकता है. यू मे बी आस्क्ड फॉर परफॉर्म टू एस्टिमेशन. आपसे पूछा जा सकता है कि इस नंबर्स को बता. तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद योर नंबर. अरिथमेटिक मीन डिवीजन कैसे करनी, सब्ट्रैक्शंस कैसे करनी, ये चीज़ों को आपने क्लियरली जो है और इसके साथ कंफर्टेबल जोन आपने पहले से लर्न कर लेना है कि नंबर्स को मैं कैसे एस्टिमेट कर सकता हूँ. डू नॉट फिक्सेट और क्रैकिंग द केस. आपने इन्फॉर्मेशन को तोड़ना नहीं है, तोड़ के या इस तरीके बुरे तरीके से इसको ब्रेक नहीं करना, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करना. इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट टू डेमोन्स्ट्रेट अ लॉजिकल थॉट प्रोसेस देन टू अराइव एट द सॉल्यूशंस.
9 है रिलैक्स एंड एंजॉय द प्रोसेस। थिंक ऑफ इंटरव्यूअर एज अ टीममेट। आपने इंटरव्यूअर को जो है उसको एज अ टीममेट लेना है इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के मामले में, प्रोसेस में आपने उसको एज अ टीममेट कंसीडर करना है। एंड द केस आर अ रियल क्लाइंट प्रॉब्लम दैट यू नीड टू एक्सप्लोर दैट टू सॉल्व, कि आपने क्लाइंट के रियल प्रॉब्लम को आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है और फिर उसको सॉल्व भी करना। ऑल क्लाइंट नीड टू प्रैग्मेटिक सोल्यूशन। उनको बहुत ज़्यादा क्लियर सोल्यूशंस की ज़रूरत होती है, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। डैट कैन act as soon as possible. Always focus on actionable recommendations. आपने अगर कोई रिकमेंडेशन करनी, दैट शुड बी एक्शनेबल। ये नहीं है कि आपने उसको कोई ऐसी चीज़ दे दी कि उसने सुना और उससे निकाल दिया। आपने हमेशा उसको एक्शनेबल की, जिस पे काम किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को और एक्सप्लोर किया जाए। इवन थ्रो समटाइम दे मे नॉट बी मोस्ट एलिगेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। समटाइम कोई शानदार सोल्यूशन नहीं भी मिलता। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको शानदार सोल्यूशन मिलेगा, एलिगेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, but you still need to very relaxed and enjoy the process with your interview टीममेट बनाना, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। रियल सिचुएशंस में जाना, उसको ज़्यादा डिटेल में करना और उसको सॉल्व भी करना है। और फिर आपने प्रैग्मेटिक सोल्यूशन दैट कैन नॉट एक्ट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। सम कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं जब हम केस स्टडीज करते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते और आंसर रॉन्ग दे देते हैं, ठीक है, ये एक कॉमन मिस्टेक हो सकती है। प्रोसीडिंग इन हैप्पैज़ार्ड फैशन। जल्दी जल्दी किसी काम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट आइडेंटिफाई द मेजर इशू दैट नीड टू बी एग्जामिन्ड और जंपिंग फ्रॉम वन इशू टू अनदर विदाउट आउटलाइनिंग यू ओवरऑल अप्रोच। जब आप एक इशू को प्रॉपर एड्रेस किए बगैर, उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई किए बगैर अगले प्रॉब्लम पर जंप कर जाएंगे तो पिछला तो रह जाएगा, आपकी केस स्टडी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि आप उसको हैज़ार्ड तरीके से फॉरवर्ड कर रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, ठीक। आस्किंग अ बैरेज ऑफ क्वेश्चन। बैरेज ऑफ क्वेश्चन में क्या करता है? विदाउट एक्सप्लेनिंग टू द इंटरव्यूअर व्हाई यू नीड द इंफॉर्मेशन। बैरेज का मतलब होता है कि आपने उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिनकी आपको विदाउट एक्सप्लेनिंग टू द इंटरव्यूअर व्हाई यू नीड द इंफॉर्मेशन, कि आपको जब आप किसी इंटरव्यूअर से कुछ एक्सप्लेन किए बगैर कि आप ये क्यों इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द बैरेज। अपने बैरेज क्वेश्चन नहीं करने। Okay, because you joined late and now you are asking for again, please. है ना गुले लाला? You joined late, now you are telling me. I really headache today. The failing to synthesize a point of view। जब आप, ये भी हो सकती है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन तो ले ली है, लेकिन अब आप उसको, जैसे मैंने पढ़ाया था ना कॉग्निटिव डोमेन में, कि क्या होता है, क्या था मैं भूल गई। सिंथेसाइज करना है आपने, उसको पहले क्या करना है, हाय अल्लाह, मैं एक टर्म भूल गई हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट मैंने रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। सिंथेसाइज, ठीक है, सिंथेसाइज यानी कि किसी पहले कंपोनेंट में इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको क्या करना है, सिंथेसाइज यानी कि होल पार्ट में इसको, उस कंपोनेंट को क्या करना, उसके पार्ट को इकट्ठा करके सिंथेसाइज करके इन्फॉर्मेशन। जब किसी इन्फॉर्मेशन आपने बहुत सारी पार्ट में, लेकिन आप उसको इकट्ठा नहीं कर रहे, इकट्ठा करके कैसे मैं इसको समराइज करके बताऊँ, तो उसको क्या कहते हैं, सिंथेसाइज द पॉइंट ऑफ व्यू। Even if you don't have time to talk through all the key issues, be sure to synthesize a point of view based on where you end up, ठीक है। So आपने be clear, always be summarize your own opinion, have a ability to synthesize the information and data so that you can have a proper case study। नॉट आस्किंग द हेल्प। जब हम हेल्प के लिए नहीं कहेंगे तो ये भी हमारी एक मिस्टेक है, ठीक है। सम कैंडिडेट फील इट इज़ अनएप्रोप्रिएट टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन दे आर स्टक। जब वो स्टक हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि हेल्प लेना कोई फ़ायदा नहीं है, या वो शाय फील करते हैं या अनएप्रोप्रिएट समझते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। वेदर इट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू ओवरऑल प्रॉब्लम, whether you are struggling with or specific analysis, be sure to ask for help when you need it।
आपने हमेशा क्या करना है, हमेशा आपने क्या करना है, आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। अब हम किसकी बात करेंगे, मेरा ख्याल 4 मिनट रह गए का स्पेस राइटिंग टिप जो होती हैं वो हम बाद में पढ़ लेंगे। हमने कॉमन मिस्टेक को अंडरस्टैंड किया है कि क्या क्या थी। केस स्टडीज की जो राइटिंग टिप्स हैं वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो गुले लाला, इट्स ओके, रहने दे मैम। नो नो नो, आई कैन एक्सप्लेन यू गुले लाला, डोंट वरी। So you were asking about the history. So as I told you people in before, you know, I always need the clear concept to with my students. So I always prefer to, you can ask again, but sometimes because here the difficulty is this, you go to the whole slide back. So history is Gulelala very interested. We learn the case studies about case studies. Case studies के बारे में हमने सीखा था कि पहले जो था 90 सेंचुरीज के अंदर, 1900 सेंचुरीज के अंदर जो था वो केस स्टडीज जो होती थी वो सोशल इश्यूज जैसे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या की जाती थी। लेकिन इसका जो पर्पस था, आपने लेट ज्वाइन किया ना इसलिए आप हिस्ट्री पूछ रहे हो। So purpose of case study is to clarify, define, understand how and why a various issues, social issues क्यों होते हैं और इनका परफेक्ट सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। ठीक है, far from the perfect case studies have received criticism for condensed number of subject। आपने पीछे देखा, अगर पीछे देखा जाए और आप पीछे से लेकर अब तक देखा जाए तो जो परफेक्ट आपको केस स्टडीज उन पे भी आपने देखा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता था बिकॉज ऑफ कंडेंस नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि उसको ज़्यादा कंडेंस में नंबर में, यानी कि बहुत ज़्यादा जो था, क्या कंडेंस का मतलब होता है सॉलिड, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लियर, कम जो होता है रिड्यूस्ड जैसे कह सकते, कंडेंस होता है किस चीज़ को रिड्यूस कर देना, कंप्रेस कर देना। ठीक है, कंप्रेस होता था, सब्जेक्ट नंबर क्लियर नहीं होते थे, इसलिए उसको क्या करते हैं, वो अपने हाइपोथेसिस को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है केस स्टडीज को आपने देखा इस पर क्रिटिसाइज होती थी और उसकी वजह ये होती थी कि कंडेंस नंबर की वजह से होती थी और वजह ये होती थी कि उसका हाइपोथेसिस क्लियर नहीं होता था, इससे प्रॉपर हाइपोथेसिस बन नहीं सकता था। हाइपोथेसिस का मतलब मैंने बताया था कि समरी, यानी कि ब्रीफ किसी चीज़ के बारे में जो आपने क्वेश्चन है, आपने उसके बारे में एक समरी बनानी है कि ये वाज, जैसे हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं एक अपना, यानी कि ख्याली एक प्रपोज प्लान देते हैं। ठीक है, टुडे केस स्टडीज आर मोर कॉमनली यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लॉ एंड मेडिसिन। आज हम देखते हैं कि केस स्टडीज से ज़्यादा कहाँ यूज होती हैं, केस स्टडीज आर मोर कॉमनली यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लॉ एंड मेडिसिन। 1 मिनट रह गया, मैं जल्दी जल्दी आपको डिस्क्राइब कर दूँ। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसने 1934 में, इससे पीछे जो हो रही थी इसके बाद 1934 के बाद क्या स्टैब्लिश हुआ था, किसमें केस स्टडी को के कॉन्सेप्ट को किया गया, इन मेडिसिन के अंदर। ठीक है, और इसका मतलब क्या था, नई थ्योरी को जो है वो पेश करना इन सोशल साइंसेज। So my dear, another room is joined, so thank you so much.